गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना आपको। हम इसके थोड़े माइंड मैप की बात करेंगे, या समरी बॉक्स कह सकते हो आप, चैप्टर का जो समरी बॉक्स है पूरा। फर्स्ट फार्मूला E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन, और E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सिंस न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा, momentum of photon P equal to h by lambda, P equal to h by lambda. Another formula is K max equal to EV naught. Next formula K max equal to half mv max square, and K max value is EV naught, half mv max square. By this formula we can find the velocity 2ev naught divided by m root, that is v max. Formula number 6, Einstein Photoelectric equation, K max equal to h nu minus h nu naught. 7, work function phi is h nu naught. Formula number 8, most important formula, slope h by e or delta v naught by delta nu. Next, lambda equal to h by mv, lambda equal to h by 2me, lambda equal to h by 2mqv, 12, lambda equal to h by 3mkt, where k is the Boltzmann constant. K is the Boltzmann constant. T is temperature. 13, lambda is 12.27 by under root v naught angstrom. This is the for an electron. This wavelength only for the electron, 12.27 by under root v naught. Last 5 formula used to find the de Broglie wavelength. This, when velocity given, this kinetic energy given, this potential, this temperature, and last is the for an electron. So from this box we can find the different question in the dual nature. Formula number 14, when we compare the alpha particle and proton, alpha particle 2He4 and proton is 1H1. Listen, these two particles are most important particle in this chapter. So today we are discussing very important question according to the view of the Cbse paper 2022. Suppose we take the question, our first question is a proton and an alpha particle and
an alpha particle, a proton and an alpha particle are accelerated through same potential, are accelerated through same potential, same potential, which one of two has, which one of two have, first point, greater de Broglie wavelength and less kinetic energy. Greater de Broglie wavelength, and second point, less kinetic energy. Student, very important question in front of you. Listen very carefully. प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन अभी भी हमने आपको बताया 2He4 हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल and 1H1 is proton. In the previous page we see 5 formula of de Broglie wavelength. 5 formula means 5 term. We have 5 term. We apply here same potential means lambda equal to h by 2mqv. It means lambda proportional to 1 by what? mq, because rest two quantity are similar, so they are cancel out to each other. You can write for same v, v same. So we have two particle, two wavelength, lambda p by lambda alpha is m alpha, q alpha, mp, qp. Apply above formula in term of proton and alpha particle. But here we see q alpha is twice of qp, m alpha is 4 of mp. Putting a value, lambda p by lambda alpha is 4 mp twice qp, mp and qp by dividing 8 by 1, 2 root 2 by 1, lambda p by lambda alpha. Lambda p by lambda alpha 2 root 2 by 1, it means lambda p greater than lambda alpha. De Broglie wavelength of proton is more than de Broglie wavelength of what? Alpha particle. तो देखो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में क्या करना था, सेम पोटेंशियल था इसलिए हमने पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई किया. जब हमने पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई किया तो उसमें सेम पोटेंशियल था और प्लैंक कांस्टेंट भी सेम था. दो इक्वेशन लगा करके जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा इक्वल टू एम अल्फा एम पी क्यू पी. दोनों को डिवाइड करने के बाद 2 रूट 2 बाई 1 आ गया. सेकंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी. अब हमें काइनेटिक एनर्जी का ऐसा फार्मूला लेना है जो सेम पोटेंशियल में मैच करता हो. इट मीन्स के प्रोपोर्शनल टू क्यू. जिसका क्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. के पी बाई के अल्फ़ा इक्वल टू क्यू पी बाई क्यू अल्फ़ा. अभी आपने देखा भाई यहाँ क्या था, 2 क्यू पी था. क्यू पी बाई 2 क्यू पी कैंसिल आउट हो गया. के पी बाई के अल्फ़ा इज़ 1 बाई 2. के पी बाई के अल्फ़ा इज़ 1 बाई 2. इट मीन्स
Kp equal to, it means Kp equal to K alpha equal to twice of Kp. It means K alpha equal to, it means, तो देखो जब आप डिवाइड करोगे तो Qp से Qp कैंसिल हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई पॉइंट. प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलेरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल. देखो सेम पोटेंशियल की बात आई थी, इसलिए हमने डी ब्रोगली के पोटेंशियल वाला फार्मूला लगाया है. और आपको देखना है कि जो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में मास का जो रेशियो है वो 4 टाइम्स होता है, और जो चार्ज का रेशियो है वो 2 टाइम्स होता है. तो चलो अब देखो अगला क्वेश्चन जब हम लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2. देखो जिन क्वेश्चनों की बात हो रही है हमारी, सारे सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. तो आप ज़रा ध्यान से देखो. एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन. An electron and a proton are accelerated through same potential. Are accelerated through same potential. Same potential. Which one of two has greater de Broglie wavelength? Greater de Broglie wavelength, less momentum. Which one of two have greater de Broglie wavelength, greater de Broglie wavelength, greater de Broglie wavelength and less momentum. Very good question. देखो एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल. सेम फार्मूला आपको लगाना है पीछे का. सेम पोटेंशियल वर्ड आ गया. इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू h/2m/qv. lambda inversely proportional to mq. lambda e by lambda p इन्वर्सली का रिलेशन है me qe mp qp. अब देखो आपको सबको पता qe इक्वल टू qp, दोनों का चार्ज सेम होता है, कैंसिल हो जाएंगे. अब me लेस देन mp, मास ऑफ प्रोटॉन जो है ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स me बाई mp लेस देन 1. देयरफॉर लेस देन 1 आ गया. अगर हमने किया लैम्डा ई बाई लैम्डा पी, तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा, mp आ जाएगा, और यहाँ देखो me आ जाएगा. me बाई mp लेस देन 1. देयरफॉर lambda e by lambda p greater than 1, lambda e greater than lambda p. De Broglie wavelength of electron is more than de Broglie wavelength of proton. And next point is momentum. You have to find the momentum. How you calculate the momentum? Momentum symbol is p. P equal to 2me. 11th क्लास आपने फॉर्मूला पढ़ा. एंड E इक्वल टू QV. इट मीन्स 2m QV. P proportional to again what? P directly proportional to the m and Q. P directly proportional to m since MP greater than ME. Therefore PP greater than PE. PP means proton. Momentum of proton is more than momentum of electron. PP means momentum
of proton is greater than momentum of electron। देखो स्टूडेंट, प्रोटॉन का जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से ज़्यादा होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, and a proton have same kinetic energy। देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है। which of these particles has shortest wavelength? which of these particles have shortest de Broglie wavelength? An electron, alpha particle and a proton have same kinetic energy। देखो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। which of these particle, इनमें से कौन से पार्टिकल हैव शॉर्टेस्ट मतलब कम डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। तो अब देखो अगर हम सेम काइनेटिक एनर्जी की बात कर दी है इसने, तो कौन से फार्मूले की बात करेंगे हम, जरा आप लोग बोलो। सेम काइनेटिक एनर्जी, पीछे आपने देखा था काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला था आपके पास। विच फार्मूला? लैम्डा इक्वल टू h/2m_e। काइनेटिक एनर्जी सेम है, h सेम होगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। अब अगर हम बात देख लेते हैं, me लेस देन mp लेस देन m अल्फा। मास सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई? अल्फा का होता है। फिर किसका है? प्रोटॉन का। सबसे कम किसका? इलेक्ट्रॉन का है। तो उल्टा हो जाएगा, लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। तो इलेक्ट्रॉन है लार्जर डी ब्रोगली वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद किसका हुआ? प्रोटॉन का। सबसे कम किसका हो गया? अल्फा का। अल्फा का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा, क्योंकि अल्फा का जो मास क्या है? ज़्यादा है। ऊपर देख रहे हो आप, यू हैव सी, जो इन्वर्सली का रिलेशन है लैम्डा में और मास में। आ जाते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज an alpha particle and a proton and a proton are accelerated through same potential। फिर पोटेंशियल की बात आ गई। same potential, calculate ratio of their linear momentum। calculate ratio of their linear momentum। इनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है आपको। I again read the question। An alpha particle and a proton are accelerated through same potential। Calculate ratio of their linear momentum। अब देखो अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है P = √2me, E = QE। इट मीन्स P = 2m/QV। सेम पोटेंशियल सेम है, तो बचा क्या हमारे पास? मास बचेगा और चार्ज बचेगा। अगर हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं P α/PP, इट मीन्स M अल्फा Q अल्फा MP QP। इट मीन्स 4 MP
twice QP MP QP divide root 8 by 1 2 root 2 ratio 1 P alpha by PP. It means P alpha equal to 2 root 2 times PP. PP means मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा हुआ? अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा हो गया। किसका ज़्यादा हुआ? अल्फा पार्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट ए ग्राफ लिखा हुआ है। प्लॉट ए ग्राफ देखो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ plot a graph showing variation of de Broglie wavelength lambda and 1 by under root V, where V is the potential for two particle A and B। दो पार्टिकल ए और बी उनके लिए है। कह रहे हैं सेम चार्ज बट मासेस M1 M2। देखो कह रहे हैं सेम चार्ज बट मासेस M1 and M2, where M1 is greater than M2। M1 is greater than M2। Which one of two represent a particle of smaller mass and phi? Which one of two represents a particle of smaller mass and y। देखो क्वेश्चन बोला है प्लॉट ए ग्राफ, आपको ग्राफ प्लॉट करना है शोइंग ए वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एंड 1 बाई अंडर रूट वी। देखो फिर भी पोटेंशियल की बात आ गई। अब अगर पोटेंशियल की बात आ गई तो जो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए स्टूडेंट? लैम्डा और 1 बाई रूट वी का रिलेशन आपको लेना है। आवर रिलेशन इज लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m/q_v। वी सी हियर 1 बाई अंडर रूट वी। देखो ग्राफ की बात जब हम प्लॉट करेंगे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो ये रहा भाई, ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये लैम्डा है, देखो 1 बाई रूट वी है। अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m/q 1 बाई रूट वी। अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx से, तो देखो ये हमारा स्लोप बन जाएगा। स्लोप इक्वल टू h बाई 2m/q। देखो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास रूट m। अब हमने देखा है कि सिंस M1, अब देखो स्लोप किसका ज़्यादा है भाई? M2 का। तो यहाँ क्या आप लिखोगे? स्लोप ऑफ M1 इज लेस देन स्लोप ऑफ M2। M1 का जो स्लोप है वो कम है, तो मास ऑफ M1 इज ग्रेटर देन मास ऑफ M2। M1 का मास ज़्यादा होगा, M2 का मास क्या होगा? कम होगा। किसका मास ज़्यादा होगा? M1 ज़्यादा होगा। इट मीन्स विच इज लाइटर? मास ऑफ M1 is greater than mass of M2। Mass of M1 is greater than mass of M2। M2 is smaller mass।
m2 is smaller mass since slope of m2 is larger than slope of m1। भाई जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका मास कम होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन्वर्सली का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? इन्वर्सली का रिलेशन है, इसलिए ऐसा हो गया। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी बात चल रही है, आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा बोर्ड के पेपर में। अगर आप देखोगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर उठाओ, आप जब सैम्पल पेपर में देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन नज़र आएंगे विद इन 10 ईयर का। 10 ईयर का अगर आप देखो, 10 ईयर में आपको सारे क्वेश्चन ही नज़र आएंगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। 6 क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंड an alpha particle have same de Broglie wavelength, same de Broglie wavelength. Determine the ratio of first point, their accelerating potential. Second point, their पहला पॉइंट क्या था? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देयर स्पीड्स, पॉइंट नंबर 2, their speeds. First point, question number 1, what is the lambda equal to h by 2mqv? Lambda equal to h by 2mqv। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से हम लैम्डा स्क्वायर कर लेते हैं, h स्क्वायर बाई 2mqv, v इज h स्क्वायर बाई 2mq लैम्डा स्क्वायर। v की वैल्यू देखो हमने निकाल लिया। अब अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, क्या क्या सेम रहेगा भाई? h सेम है और लैम्डा सेम है, m और q बचेगा। अगर यहाँ रेशियो ले लेते हैं वी पी बाई वी अल्फ़ा, तो क्या मिला आपको? अपोजिट मिलेगा, एम अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा एम पी क्यू पी। अब अभी बताया गया है 4 एम पी ट्वाइस क्यू पी एम पी एंड क्यू पी, दिस इज कैंसिल 8/1 वी पी बाई वी अल्फ़ा। और रेशियो इज 8:1, VP रेशियो V अल्फ़ा इज 8:1। सेकंड पॉइंट, अगर हम स्पीड की बात कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। अगर v की बात करें, h बाई एम लैम्डा, वेयर v इज स्पीड। अब दोनों को स्पीड का रेशियो ले लेते हैं, VP बाई वी अल्फ़ा इक्वल टू एम अल्फ़ा बाई एम पी, क्योंकि ये सेम है और ये सेम है, एम अल्फ़ा बाई एम पी। एम अल्फ़ा भी आपने पढ़ा है 4 एम पी, और यहाँ देखो केवल भाई एम पी है, एम पी से एम पी कट गया, 4/1, इट मीन्स वी पी बाई वी अल्फ़ा। तो वी पी रेशियो वी अल्फ़ा इज 4:1। देखो बहुत अगला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो कम से कम ये क्वेश्चन 2010 से बात करें तो 5 टाइम्स बोर्ड में आया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को हर कोई बहुत ध्यान से देखना, आप इसको करके भी जाना है। क्वेश्चन क्या है, लिखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटॉन
Question number 7. Question number 7. De Broglie wavelength lambda of a photon and de Broglie wavelength lambda of a photon and de Broglie wavelength associated with particle has same value, and de Broglie wavelength associated with a particle have सेम वैल्यू लैम्डा। देखो दोनों की वैल्यू जो है लैम्डा है। आपको बताना है सो दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज energy of photon is 2 lambda mc by h times 2 lambda mc by h times kinetic energy of particle times kinetic energy of particle। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन की हमने बात की है सबसे मेन क्वेश्चन हमारा है। देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करेंगे, फार्मूला है एच सी बाई लैम्डा। अगर काइनेटिक एनर्जी हम पार्टिकल की बात करेंगे, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप कि हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ मोमेंटम वाला फार्मूला यूज करेंगे और पी हमने पढ़ा है पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, तो यहाँ पी की जगह आपको वैल्यू डालनी है एच स्क्वायर बाई 2 लैम्डा स्क्वायर एम। अब देखो दोनों का आ गए, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं भाई, के फोटॉन डिवाइडेड बाई के पार्टिकल, के फोटॉन बाई के पार्टिकल, एच सी बाई लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। एक एच एच काट देते हैं, एक लैम्डा भी कट जाएगा, क्या मिला 2m लैम्डा सी एच नहीं बाई एच, 2 लैम्डा एम सी बाई एच। और इसको अगर इधर बोल देते हैं तो के फोटॉन 2 लैम्डा एम सी बाई एच इंटू के पार्टिकल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा ध्यान से ज़रूर देखोगे क्योंकि ये बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 2 लैम्डा एम सी बाई एच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल ले लो जिसका मास हमने m लिया है, वो पार्टिकल का मास हमने देखो m लिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हेन द लाइट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, listen student, when the light of frequency 2f naught is incident on the metal surface, when light of frequency 2f naught is incident on the metal surface, the maximum velocity of electron is v1। the maximum velocity of electron emitted is v1। maximum velocity of electron emitted is v1 when frequency of incident radiation increased by, when frequency of
incident radiation is increased by 5f naught, increased by 5f naught, the maximum velocity of emitted electron v2, the maximum velocity of emitted electron is v2. Find the ratio of v1 and v2 if f naught is थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ये भी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो वर्क फंक्शन है देखो एच एफ नोट। अब हमें देखो आइंस्टाइन का फार्मूला लगाना है। आइंस्टाइन का फार्मूला क्या था भाई? आइंस्टाइन का फार्मूला था हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच एफ नोट। न्यू की वैल्यू यहाँ दी गई है 2f नोट। पहले न्यू कितना था? 2f नोट। हाफ एम v1 स्क्वायर h इंटू 2f नोट माइनस एच एफ नोट, दैट इज एच एफ नोट। It means half m v1 square is hf naught. Equation number 1. Second equation, half m v2 square is h into 5f naught minus hf naught. Half m v2 square is 4hf naught. When we dividing by 1 and 2, dividing 1 by 2, half m v1 square, half m v2 square is 1 by 4, cancel, v1 by v2 is 1 by 2. It means ratio is 1:2. What is ratio student? 1:2. देख लिया होगा आपने 1:2। कितना आंसर आ गया? 1:2। इट मीन्स v1 बाई v2 इज 1:2। कौन सा फार्मूला लगाया हमने? कौन सा फार्मूला लगाया? आपने लगाया आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। एच न्यू माइनस एच न्यू नोट क्या मिला? देखो अब हमें क्या करना था भाई, 2 बार हमने वैल्यू डाल दी, 2 टाइम्स हमने वैल्यू डाल दिया। 5 नोट इज एच न्यू नोट। न्यू को इसने एफ नोट रखा था, तो एक बार न्यू हमारा 2f नोट था, एक बार न्यू हमारा 5f नोट था। तो दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला निकला 1:2 आपका आंसर आ गया। योर आंसर इज 1:2। तो देखो यहाँ तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की डुअल नेचर के। तो चलो आज हम यही वीडियो रोकते हैं। थैंक यू।